मॉर्निंग एव्हरीवन. 10:04 झाले. विल स्टार्ट विथ टुडेज सेशन. ओके. सो as you all know, every Saturday we are trying to connect with you in Ideal Pathshala, wherein we are going to talk about small concepts each Saturday. Today it's going to be investors' goals. So let's move on to the next slide. You already know both of us, so I'll not waste time in talking about us. This is the client base and our assets under management and number of years. We are, by the way, in the 25th year of managing financial planning and services. Since we are conducting sessions online, few do's and don'ts. We request you all to rename yourself with your full name so that our representatives can identify you and can share material in the future if required. If possible, please keep your videos on. Just a moment. We request you to keep your audios on mute and videos on if possible, so that session interactive rahega and you can understand and learn the better way. If you want to ask any questions during the session, please drop us a message in the chat box. ये सेशन के लिए तो एक्टिविटी शीट की जरूरत नहीं है, शायद नेक्स्ट सेशन से जरूरत लग सकती है. We'll mention you and we'll share with you in advance if any activity sheets are required to be taken printouts of. Carry notebooks, pens to write notes. Be attentive. Thank you. मैं लास्ट में आपके सबके क्वेश्चंस आंसर करूंगी for sure. This is the slide about the past sessions that we had conducted. The first one was terminology of health insurance. After 2-3 sessions, we'll again repeat insurance with maybe term insurance or any other topic related to risk assessment, which is insurance. Second session was of basics of SIP. How does SIP work? उसके rules and regulations क्या है? Third one was connected to SIP, which was top up SIP. कि आपके एक सर्टन अमाउंट के SIP चालू है, उसमें अगर आप टॉप अप करते हो तो क्या फर्क पड़ता है. एंड आई एम हैप्पी टू शेयर कि ये सेशन के बाद देयर वर पीपल हु अप्रोच्ड अस. दे वर ईगर टू नो what will be the corpus generated with the current SIP, what the impact could be with top up SIP. There were few people who approached us even to begin with the top up SIP, so that was a positive change. Thank you. This was the purpose to create an awareness. कुछ लोगों ने ये भी बताया कि शायद मुझे अभी पॉसिबल नहीं है पर मैं 6 महीने बाद जरूर करूंगा. वी जस्ट ऑल वी वांट इज हमने कुछ सिखाया इसलिए आप इमीडिएटली वो इम्प्लीमेंट करो, ये बात नहीं है. पॉइंट ये नहीं है. पॉइंट ये है कि आप कंसेप्ट को समझ लो, धीरे धीरे हम इम्प्लीमेंट उसे कर सकते हैं. जैसे कि आपको पता है टुडेज टॉपिक इज इन्वेस्टर्स गोल्स. एक बहुत अच्छा कोट मुझे यहाँ पे मिला था. आई वांटेड टू इंक्लूड दैट. आवर जॉब इज कंप्लीटेड व्हेन अ क्लाइंट अचीव्स देयर गोल, नॉट व्हेन दे इन्वेस्ट और बाय अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट. बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, हाँ मैंने तो चेक दे दिया, इन्वेस्टमेंट हो गई, हो गया. ना आपका काम वहां खत्म होता है ना हमारा, बिकॉज इट इज जस्ट इन्वेस्टमेंट. वो तो आप कहीं से भी कर सकते हो. बाय यूजिंग एन ऐप ऑल्सो यू कैन इन्वेस्ट. व्हाट एन एडवाइजर कैन कॉन्ट्रीब्यूट हियर इज we would help you to identify what are your life goals, why are you investing and how to achieve that. हम लोगों को ना शुरू में पूछा करते थे आपके गोल्स क्या है, आप ये पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो. एंड वी ऑब्जर्व पीपल यूज्ड टू गो ब्लैंक समटाइम्स. They wanted to achieve certain amount for certain things, but they were not aware how much. And if you are one of them, please don't worry.
We are here to help you even in identifying your goals, even in identifying the tenure and the amount. मैं लास्ट में वो वाली शीट भी आपके साथ शेयर करूंगी. So जब हम गोल्स की बात कर रहे हैं, when I want to talk about goals, it has to be a smart goal. When I say smart, the meaning of smart is SMART, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो. It has to be a specific goals. बहुत बार हम देखते हैं कि लोग वेग आइडियाज के साथ बात करते हैं, जैसे आई वॉन्ट टू रिटायर अर्ली, आई वॉन्ट टू बाय अ होम. बट यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल्स लिखे कि बी स्पेसिफिक. आई वॉन्ट टू रिटायर आफ्टर सर्टन ईयर्स. आई वॉन्ट टू बाय अ सर्टन square feet of home in certain areas. The more clear and specific you are with your goals, there are chances that you will achieve them. The second goal has to be measurable. जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, आई वॉन्ट टू बाय एन एक्सपेंसिव हाउस. सी एक्सपेंसिव कैन बी 3 crore. किसी के लिए तो 30 lakhs भी एक्सपेंसिव हो सकता है. सो इट्स अ रिलेटिव टर्म. देर इज नथिंग गुड और बैड इन इट, राइट और रॉन्ग, बट बी the goal has to be measurable. So when you can measure it, when you add an amount to your goal, जब आप एक amount उसको attach करते हो goal के साथ, तब हमें वो आपको अचीव करने के लिए हेल्प करना ईजी हो जाता है, और आपके लिए वो अचीव करना भी कंपैरेटिवली ईजी और प्रैक्टिकल हो जाता है. इट हैज़ टू बी अचीवेबल. ऑफकोर्स एक स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस पे आप हो, दैट डजंट मीन कि आपकी ग्रोथ नहीं होगी. येस, ऑफ कोर्स देयर विल बी एन इंक्रीमेंट, देयर विल बी अ ग्रोथ, बट जो भी आप प्लान कर रहे हो, थोड़ा सा अपने करंट फाइनेंशियल या फिर ग्रोथ के हिसाब से उसे अचीवेबल, जो अचीवेबल है उसके साथ चलिए. ऑफ कोर्स वी कैन एनी टाइम रिवाइज द गोल्स. जैसे कि आई वांट टू बाय अ कार दिस ईयर बाय सेलिंग माय इन्वेस्टमेंट. सी यू आर नॉट अचीविंग बाय सेलिंग द होल इन्वेस्टमेंट्स, बट when you say, I want to buy a car in 3 years, I'll have a money. When I'll have a money for some amount of money to make a down payment. इससे क्या होता है, आपकी इन्वेस्टमेंट भी इंटैक्ट रहेगी, आप थोड़ा टाइम भी दे रहे हो, अचीवेबल कंडीशन में आकर 3 साल के बाद आप बाय कर रहे हो, ना कि इमोशनल कनेक्शन से आप कुछ चीजें इम्पल्सिवली बाय कर रहे हो. Second last is relevant. The goal has to be relevant. एग्जाम्पल पढ़ते, आई वॉन्ट टू बाय सेकेंड हाउस इन अपकमिंग न्यू प्रॉपर्टी. थोड़ा क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर. आई वॉन्ट टू अपग्रेड अ न्यू हाउस बाय सेलिंग माई फर्स्ट हाउस. ताकि आप क्लियर हो के रेलिवेंट है कुछ कि ये घर में बेच रहा हूँ या बेच रही हूँ, उससे कुछ सम ऑफ मनी रिसीव होगा जिससे मैं अपग्रेड करूंगी विद द न्यू हाउस. लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज टू बी टाइम बाउंड. मुझे कभी तो रिटायर होना है फ्यूचर में, अर्ली फ्यूचर आई वांट टू रिटायर. ये अर्ली शायद 10 साल है या 2 साल है, यू वुड नेवर नो. सो यू शुड नो when you want to retire, you should know when you want to buy a house, you should know when. So it has to be time bound. So these are the characteristics or features of goals. अगर इसके साथ आप चलो, डोंट वरी, मैं बस थियरी समझा रही हूँ. प्रैक्टिकल आज हम आपके साथ करने वाले हैं. After 5-10 minutes, after completing few of the slides, just a moment. Got it. We will consider few case studies, live case studies here, जो कि हम हमारे डे टू डे लाइफ में यहाँ ऑफिस में बैठे बैठे एक्सपीरियंस करते हैं. मैं लाइव केस स्टडीज आपके साथ शेयर करूंगी आज. जो गलतियां लोग करते हैं, गलती नहीं बोल सकते, देयर कैन बी ऑलवेज एन सेकेंड ऑप्शन, बट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या सही हो सकता है और किस तरह से हम उनको गलत डिसीजन लेने से बचा सकते हैं और क्या वे आउट हो सकता है. सो बिफोर दैट कुछ कुछ गोल्स समझ लेते हैं कि क्या क्या गोल्स होते हैं. चलो ये मैं स्लाइड हटा देती हूँ. आई वुड लाइक टू यू ऑल पार्टिसिपेट कि क्या आप बता सकते हो, आपको क्या लगता है कि आपके लाइफ में क्या क्या गोल्स हैं. Anyone would like to participate, you can unmute yourself and tell us, or you can type it in the chat box.
Let's keep it interactive. You will learn it in a better way. Any goals that you think are relevant in your lives? I Yes. wish to travel the world. Sorry, Prachi. I want to travel the world. Very good. Travel, international travel world. Yes. Very good. Yes. करूया आपण. ओके. अजून कोणाला काही बोलायचं आहे? एनी गोल्स दॅट यू वुड लाईक टू शेअर हिअर? कॉमन गोल्स असतात. काही प्रत्येकाच्या आयुष्यात काही वेगळी असतील. इन फॅक्ट आय वुड Hello. अप्रिशिएट इफ एनीवन वॉन्ट्स टू शेअर. दुसऱ्यांना पण आयडियाज मिळतील. येस प्लीज. Yeah, and likewise, if I have my home loan, then I want to reduce that. व्हेरी गुड. म्हणजे ते अर्ली मला रिपेमेंट ऑफ. येस. yes, yes. येस. थँक यू. थँक यू फॉर शेअरिंग. एनीवन एल्स? Hello, ma'am. येस. I want to keep some money for my daughter's education. व्हेरी गुड. चाइल्ड एज्युकेशन व्हेरी इम्पॉर्टंट. चाइल्ड मॅरेज असू शकतं, चाइल्ड एज्युकेशन असू शकतं. व्हेरी गुड. एनीवन एल्स? तुम्ही चॅटबॉक्समध्ये पण टाकू शकता. तुम्ही अनम्यूट करून बोलू शकता. हॅलो. येस. मला माझ्या फॅमिली बरोबर बहिणींबरोबर कुठे ट्रिपला वगैरे जायचं आहे व्हेरी आणि गुड. ट्रॅव्हल. फायनान्शियल इंडिपेंडन्स. परफेक्ट. व्हेरी नाईस. व्हेरी नाईस. सो अशीच काही गोल्स आम्ही आयडेंटिफाय केलेत. चला बघूया आपल्याकडे काय काय लिस्ट आहे. ठीक आहे. सो हे साधारण प्रत्येकाच्या आयुष्यात जे येतात ते कॉमन गोल्स आम्ही लिस्ट आउट केले. तुमच्याकडे पण काही वेगळे असतील. ह्या व्यतिरिक्त तुम्ही शेअर पण करू शकता किंवा तुम्ही चॅटबॉक्समध्ये मेसेज करा. सो लेट्स सी. इमर्जन्सी फंडिंग. दिस हैज टू बी अ गोल फॉर एवरीबडी बाय द वे. ये कोई स्किप नहीं कर सकता. वी एज एन एडवाइजर वांट ईच वन ऑफ यू टू हैव दिस कंटिंजेंसी गोल और इमरजेंसी फंडिंग. टॉपिक निकला है तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी यहाँ पर. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द राइट अमाउंट ऑफ इमरजेंसी फंड एज एन एडवाइजर और एज अ फाइनेंशियल प्लानर? एक हमारा फॉर्मूला है. कैन एनीवन वुड लाइक टू शेयर हियर कि हम कितना सजेस्ट करते हैं? अगर किसी ने हमारे साथ पहले बात की है या आज का टॉपिक. 6 months expenses. Yes, very good, Prachi. The answer is correct. 6 months expenses or another option is 3 months of. Your package. Yes, 3 months of your monthly salary. Yes, very good, Prachi. Thanks. So either we suggest everybody कि आपके पास हमेशा एक फंड ऐसा होना चाहिए which is a contingency fund wherein you should keep 3 months of your 3 months of your salary or 6 months of your expenses aside. ठीक है. We'll discuss in detail about this. Today is not a topic, but it's a part of the goal, correct? And it has to be done by everybody. Then retirement funds, of course, very important because your income stops at that point, and then you have to earn when you are during your contribution phase. You should earn, contribute, and once after retirement, you reach your retirement phase wherein you can utilize those funds. Children's education, मेधाताईंनी सांगितलं होतं आत्ताच. हाऊस परचेस, येस. इंटरनॅशनल वेकेशन्स ॲज प्राची सजेस्टेड. हेमंत सरांनी पण सांगितलं. कार परचेस, चाइल्ड मॅरेज, न्यू व्हेंचर आजकाल खूप चालू आहे. स्टार्टअप्स लोकांना करायला आवडतात. सो ऑफकोर्स न्यू व्हेंचर्स. Sabbatical leave from work, home renovation can be one of the goal. Holiday home किंवा second home असू शकतं. Parents medical fund. See, this is also very important. You have to consider this amount. You can discuss with us how much has to be kept and how to manage your own premiums, and if you're paying for your parents, how to manage that also we can discuss separately. Higher education, club memberships, if you want to pursue any hobby, there are certain hobbies which are very expensive, and you can save few years in advance to achieve that. There are people who would like to contribute towards charity and social work. Yes, we make wills
सो हमें पता है, लोग खुद आकर बताते हैं कि नहीं हमें इतनी अमाउंट डोनेट करनी है. There are people who are working with us, they are investors, they are contributing after certain particular horizons for this social work and charity also. Legacy, of course, as I just discussed, while making wills, we have to consider legacy wealth. Big purchases, any big expenses, and Hemant sir has rightly suggested financial freedom. Just a moment. Yes. Yes, thank you, Kevri. She has pointed out that there was a message from Bhushan sir. Achieve financial freedom through early through SIP. Very good, Bhushan. So when you invest some amount, this was a good point, because when you invest for a certain goal for certain years, what happens is you are contributing and also market will contribute. Due to compounding interest, जो भी आपका टारगेट है अचीव करने के लिए को हेल्प होती है. ठीक है. So these are few goals which we could identify for you. It will vary person to person. Just to make you understand, I'll explain you, of course. numbers देख के डरिए मत. This is one of the client for whom we have created a goal planning. हम चाहते हैं कि हमारे सभी इन्वेस्टर्स का फाइनेंशियल प्लान कुछ इस तरह से दिखना चाहिए. मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं इसमें. सी हियर, इफ यू कम डाउन on the second like the next part of the page, wherein you can see here a goal which is written as, can you see here, education 2 नीचे लिखा है. एजुकेशन 2 के लिए हमारी टारगेटेड वैल्यू है, जो कि यहाँ राइट साइड में दिख रही है आपको, विच इज 75 lakhs. वी हैव ऑलरेडी उनकी SIP चालू है, उनकी इन्वेस्टमेंट हमारे पास है. सो वी हैव ऑलरेडी मैप्ड सम ऑफ द इन्वेस्टमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर गोल. बट यू कैन सी हियर दैट एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड. एक मैसेज दिख रहा है यहाँ पर. ये गोल जो 75 lakhs का है, projected value is 40 lakhs with the investment that he has done for this goal, which we have mapped for this goal. Now that person has to do at least an SIP of 7,500 to achieve this goal, or 6 lakhs 50,000 has to be paid immediately lump sum one time, so that the goal can be achieved in 2040. नीचे दूसरा गोल लिखा है, which is we can see here, this is the goal of education 3, wherein a targeted amount is 1 CR, and you can see projected value is 1.5. So likewise, left side we will identify all your life goals, whatever investment. Okay. Whenever we discuss with you about the life goals, why ये क्यों मैंने स्क्रीन दिखाई? I just want to tell you the purpose behind conducting this today's session, because we want everybody to identify your life goals. Whatever investment you have done with us, we would like to connect your investment to these life goals, wherein you can actually see कि मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, मुझे कहाँ पहुँचना है, कितने. Not only this, but this graph is so particular. Can you see here monthly additional? सबसे लास्ट में सबसे नीचे देखिए, monthly SIP not applicable, lump sum 0. Why? Because that goal you have already achieved by whatever investment you have done. So देख के कितना अच्छा लगेगा आपको कि इन्वेस्टमेंट ये टारगेट मेरा पूरा हो रहा है. नहीं तो किसी भी आप आज ऐप खोलिए आप और उसमें जाकर इन्वेस्टमेंट कीजिए. You can do the investment, you can select funds. Google will tell you which funds are good, but an advisor can do this for you. Every 6 monthly, we try to meet our investors and
अगेन विल रिव्यू ऑल द गोल्स कि मुझे 1 साल पहले लग रहा था मुझे 1 करोड़ का घर चाहिए, नहीं मुझे 2 करोड़ का चाहिए, मुझे बताइए 5,000 के SIP ज़्यादा चाहिए, चलिए मैं करता हूँ, बट एटलीस्ट यू वुड नो वेयर यू आर रीचिंग. इफ इट इज नॉट फिजिबल विल टेल यू कि नहीं आप ये टारगेट अभी मत रखिए, या फिर उसे थोड़ा और टाइम दीजिए. सो ये कैलकुलेटर्स आपको गाइड करने के लिए हेल्प करते हैं. गोल आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम हेल्प करेंगे. यस केवली. Yes. Rajendra sir, inflation rate. Yes, very good point. Can you see here towards the left side? Before retirement, we have included it. See here, first goal 6% inflation. So we have mentioned the cost and we have mentioned here clearly 6% of inflation. Even next example, we have mentioned here 6% of inflation. So this is a very good point identified by him. Always we have to consider the inflation, क्योंकि आज हमें लगता है एक वैल्यू, गोल आ रहा है 10 साल बाद, the value will be different. One more thing, today we are going to discuss now the case studies, wherein ये point हम लोग ने already इसमें include भी किया है. आइए देखते हैं case studies. Akshata, is your laptop on? Is your machine okay? तुम mute is. Hello. Yes, Akshata. We have Yes. Akshata with us to read the case studies. जैसे मैंने शुरू में बताया था, या फिर आपने अगर हमारा वीडियो देखा होगा, तो we want to keep this session interactive and we want you to participate in this. Akshata, can you read out a first case study which is based on retirement, please, for us? Yes. First of goal retirement. What is the right age to plan a retirement? Option is 60 years at the time of retirement. Second option is 55 years at the least 5 years before retirement. And third option is 30-40. Thank you, Akshata. So, when we talk about retirement, I'll explain you later. Anyone would like to participate in this? आपको क्या लगता है? Which is the right option? Please type your answer in the chat box, please. I think there What should has be to? option. Sorry, Prachi, your voice was breaking. Yeah, I think there should be a fourth option. The right age according to Yes, me to please. plan a retirement is the day you start earning. Very good, very good. As I said, Prachi, there can be many options here. Because the individual, everybody's life is different, but we have restricted to 2 or 3 options here just for today's session. But Prachi has identified very nicely. I would like to add one more thing. We always, yes, by the way, the answer is right. Third option. Before retirement, you have been left with lesser period. Otherwise, ऐसा Correct. नहीं है कि आप कभी भी plan कर सकते हो, even after 60, but then we have less time in hand. There are people who come to us at the age of 55, but again, we are left with only 5 years. As Prachi suggested, if somebody, okay, Prachi, हा point आम्ही नेहमी कधी reference येतो सांगते. We always ask people what is the right time to start with an investment. So this is the right answer. When you start earning with your first salary, you should always start with your investment. फिर आप किसी भी गोल के लिए कीजिए, may it be retirement or may it be for buying home or anyone. But thank you, Prachi. Yes. So if you can start before 30, जो कि third option से भी as suggested by her, fourth option, the earlier you start is always better. But out of these three, third option is better. तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई 60 इयर्स का हो गया तो वो प्लान नहीं कर सकता है, या फिर 55 का है तो नहीं कर सकता है? बात ये नहीं है. यू कैन प्लान योर रिटायरमेंट एनी टाइम. जो बात हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं वो ये है कि द अर्ली यू स्टार्ट इट इज बेटर फॉर यू. इसका एक रीजन है, बिकॉज आपका कॉन्ट्रीब्यूशन मंथली बहुत कम होगा. अगर आप 55 के एज में हमारे पास आते तो शायद हम आपको बोलेंगे कि आपके लिए 30 या 40-50,000 के SIP की जरूरत है. पर अगर आप एज सजेस्टेड बाय प्राची, अगर आप पहले ही सैलरी के साथ हमारे पास आते हो तो शायद
5,000 SIP can take you to 2, 3, 4 CR by the time you retire. Okay, we'll move on to the next case study. Yes, that was the right answer. Akshata, case study was this next. Yes. Goal fulfilling. Second goal is fulfilling short-term goals. I'm investing money for a short-term goal. And option is first, I want to invest in equity with higher returns and higher risk. And second option is Yes. safety and security of my principal amount is important. Now, what do you think? Which option is the right one? Please type your answers in the chat box. Yes, very good, very good. Why? Can anyone unmute yourself and explain? Would you like to contribute? Why second option? It is our hard-earned money, so we want to secure that first and then go for a profit. Very good. काय होतं when you have limited time in hand, like 1 year, generally people will come and tell us that we want to invest only for 1 year because we want to buy something, we want to make a down payment for a home, but invest in a category wherein we can earn very good returns. So both are opposite statements. Either you focus on your goal, which is short term goal, or you focus on your high returns. So generally, if you come to us for equity investment, our team will always suggest you to go for 3 years plus. If you come to us with any shorter duration, will not keep you purely in equity or direct equity for 6 months, or mutual fund equity, sorry, for 6 months or 1 year. ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन इज गोइंग टू बी ऑन दिस कि कौन से गोल के लिए किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, कौन से असेट क्लास को चूज करना चाहिए. हमारा नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट सैटरडे उस पर बेस्ड होगा. Thank you for participating. Your answers are right. Let's move on to the next case study. Yes, Akshata. Child's education. Harsh is 35 years old. He has a kid who is 5. Which option he should give a priority to? Sorry. Option first, child's education and pay school fees on priority. Second option is he should upgrade a car as it was his dream since long, and there are good offers going on. ऑफर्स चल रहे हैं तो वो तो ग्रैब करना चाहिए ना, ऑफर्स खत्म हो जाएंगे. सो यू शुड बाय अ कार. व्हाट डू यू सजेस्ट व्हाट ही शुड डू? अच्छा, ऑप्शन 1. एनीवन एल्स? यस, वेरी राइटली सजेस्टेड. कि पहले when we try to list down the goals, we always suggest one more point which is important. You should know which option to prioritize. गोल्स है बहुत सारे हो सकते हैं, पर एजुकेशन हैज टू बी द प्रायोरिटी. और आपके बेटे का स्कूल फीस भरने आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगना चाहिए. See, what happens is, why we included this is, there are people who come to us, okay, मैं SIP नहीं कर सकता हूँ, and then we come to know that he has bought a car and he has started with an EMI and he is redeeming money from mutual fund because now he has bought a car, he is paying EMI, and now he is finding it troublesome or difficult to pay for the school fees. सो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास कितने पैसे हैं और उसमें से आप क्या लेना चाह रहे हो. ठीक है, म्यूचुअल फंड में आपकी इन्वेस्टमेंट है, बट मे बी दैट इन्वेस्टमेंट इज फॉर रिटायरमेंट. म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ सेविंग्स अकाउंट ऑप्शन. सो ये इस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को सेविंग्स अकाउंट की तरह बिल्कुल प्लीज मत ट्रीट कीजिए. आपकी हर इन्वेस्टमेंट, आपकी हर SIP पता होनी चाहिए आपको कि क्यों की गई है. सो पहले प्रायोरिटाइज करो हर एक गोल को और फिर इन्वेस्ट करो. अक्षता, तुझा आवाज थोडा ब्रेक होत होता. मे बी सम कनेक्शन प्रॉब्लेम दॅट साईड. मी केस स्टडीज वाचते, कंटिन्यू करते.
We'll move on to the yes, this was the right answer. We'll move on with the fourth case study, which is about wealth security. Let's read it. Mr. Shah, who is 31 years old, he has a surplus of 35K every month. ठीक है, ध्यान से सुनिए, इंटरेस्टिंग केस है. What will be the right investment options for him? Invest total amount in equity as he is, invest total amount in equity as he is young and that will give him better returns in the long term. है ना, 35,000 बच रहा है तो better he'll invest, he'll get good returns. चलिए देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या है. He should keep some amount aside for insurance first, as it will not only take care of his life, health expenses, health related expenses, but also his wealth. तीसरा ऑप्शन देखते हैं. He can start planning about his investment later after 50. बहुत टाइम है, अभी तो 35 31 है बस. He can enjoy his life till 50 and then he can invest. He can enjoy his life now without worrying much about investment. चलिए आपको क्या लगता है? Sorry, I'm not able to view chat options. मला चॅटचे ऑप्शन्स का नाही दिसत आहेत. एक जस्ट अ मोमेंट. येस, सेकंड ऑप्शन इज राइट. सेकंड ऑप्शन में क्या होता है? When people will come to us and tell us that we have 10,000 rupees or we have 15,000 rupees and they're very young, in India we don't understand the importance of insurance. अगर आप बाहर की कंट्रीज में जाएंगे, यूएस में, यूके में, ये अवेयरनेस बहुत ज्यादा है. वो लोग पहले इंश्योरेंस सिक्योर करते हैं. यहाँ पे ना वो रील्स देखकर, कहीं फ्रेंड के इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स देखकर वो भाग भाग के आते कि नहीं हमें भी पूरा 15,000, 15 नहीं 17 करते हैं ना, चलो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते. वी ऑलवेज टेल देम ये पहला साल है आपका, आप नए नए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ 15, 17 गिव अस ओनली 10. विल स्टार्ट स्मॉल बट सिक्योर योर एसेट्स फर्स्ट. इसमें मैंने एक पॉइंट ऐड किया है. आपके लाइफ को वो कवर करेगा अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हो तो. आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो आपके हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस को कवर करेगा. ये मैंने आपके वेल्थ को कवर करेगा, वेल्थ को भी सिक्योर रखेगा, उसका भी ख्याल करेगा. ये मैंने क्यों लिखा होगा? वाई वेल्थ, हाउ कैन एन इंश्योरेंस प्रोटेक्ट योर वेल्थ? कैन एनीवन टेल मी हाउ? Anyone would like to unmute and explain us? This is a very important factor in financial planning. This is the point because of which we always suggest that give priority to insurance than investment. Of course, हमें सब चीजें करनी है. Can anyone? By general insurance of your house and whatever your these things immovable assets. By Yes. general insurance of that. Yes. My question is, हमें पहले इन्वेस्टमेंट के पहले प्रायोरिटी इंश्योरेंस को क्यों देनी चाहिए? वहां पे मैंने लिखा है कि वो आपके वेल्थ को प्रोटेक्ट करता है. इट कैन बी एनी इंश्योरेंस हेमंत सर. इट कैन बी इवन योर टर्म, हेल्थ, जनरल इंश्योरेंस, पीए, एनी इंश्योरेंस फॉर दैट मैटर. I'll explain you. If somebody loses a life, if somebody in your family is admitted, if something as suggested by Hemant sir, if something happens to the immovable asset, आप कहाँ से पैसा लोगे? आपको पैसा कम पड़ेगा, फिर आप अपने इन्वेस्टमेंट से पैसा उठाकर रिडीम कर कर वो पर्टिकुलर चीज के लिए आप पैसा दे दोगे. हम यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप इन्वेस्ट ही हर गोल के लिए अलग अलग करो. आपकी हर इन्वेस्टमेंट हम हर एक गोल के लिए मैप करेंगे एंड देन कीप योर इंश्योरेंस सेपरेट. आप एक छोटी सी अमाउंट प्रीमियम की भर दीजिए, आपकी लाइफ, हेल्थ, नॉन मूवेबल एसेट सबको सिक्योर कीजिए और फिर आप इन्वेस्टमेंट के लिए जा सकते हैं. ठीक है, दैट्स हाउ यू कैन ऑल्सो प्रोटेक्ट, आई मीन इंश्योरेंस प्रोटेक्ट योर वेल्थ. ठीक है, लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट केस स्टडी. तो ये करेक्ट आन्सर था. अभी चाइल्ड मॅरेज, मेधाताईंनी मगाशीच सांगितलं चाइल्ड मॅरेजसाठी. लेट्स सी दी केस स्टडी. यहाँ क्या लिखा है? मनीषा इज इन्वेस्टिंग फॉर हर चाइल्ड्स मैरिज.
यहाँ पे बात हुई थी, ये पॉइंट मैंने बताया था, हम लोग ने केस स्टडीज में इंक्लूड किया, ये वो वाला है। मनीषा इज इन्वेस्टिंग फॉर अ चाइल्ड मैरिज विच विल हैपन एटलीस्ट आफ्टर 15 years। ठीक है, दोनों ऑप्शंस देख लेते हैं। करंट एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर मैरिज इन द फैमिली 25 lakhs। उनके फैमिली में कई मैरिज हुआ था जो कि 25 लाख कॉस्ट थी। तो वो भी सोच रही है कि 15 साल बाद मेरे भी बेटी की शादी आएगी, तो मैं भी अभी आज से 25 लाख 15 साल में क्रिएट कर दूंगी थ्रू दी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अभी सेकेंड पॉइंट ये है कि इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन हैज टू बी कंसिडर्ड एंड इन्फ्लेटेड वैल्यू हैज टू बी कंसिडर्ड एज अ टारगेटेड अमाउंट। किसी ने क्वेश्चन पूछा था, ये आंसर है कि अभी आप सही आंसर शायद जान ही गए होंगे बिकॉज यू हैव डिस्कस दिस, कि आज अगर कॉस्ट, यस द आंसर इज राइट, आज अगर कॉस्ट 25 लाख है, मैरिज आज नहीं होने वाला, इट विल हैपन एटलीस्ट आफ्टर 12, 13, 15 years. So that inflated cost has to be considered. आप हमें अप्रोच कीजिए whenever we are working on your goals. We'll consider the horizon. अच्छा, और एक चीज many of you must be knowing, but एक पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगी, हर एक चीज के लिए रेट ऑफ इन्फ्लेशन अलग होता है। When you are costing about FMCG or consumption, it is 6%. If it is education, it could be 10%. If it is real estate, it is different. So we get a chart and we refer to that every year. बजट के साथ साथ ये भी पब्लिश होता है, तो हम कैलकुलेशंस में अलग अलग रेट ऑफ इन्फ्लेशन कंसिडर करते हैं। एक क्वेश्चन आया था, आई थिंक आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। लेट्स मूव ऑन। ये सही आंसर था। लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट केस स्टडीज। देखते हैं। मिस्टर एंड मिसेस जोशी, एज 55 and 60, हैज अ कॉर्पस ऑफ 60 lakhs थ्रू एन इन्वेस्टमेंट। ये लाइफ केसेस है। बाय द वे मैंने नाम चेंज किए, थोड़ी फॉर अमाउंट चेंज किए, थोड़ा सिंपल रखा है आपके लिए, पर ट्रस्ट मी ये सभी हम लोग ने डेली लाइफ में एक्सपीरियंस किया हुआ है। सो उन्होंने एक कॉर्पस क्रिएट किया था विच वाज 60 lakhs। नाउ दे आर बाइंग अ होम, सो विच ऑप्शन विल बी बेटर फॉर देम? चलिए देखते हैं ऑप्शन 1 क्या है। विड्रॉ अमाउंट आफ्टर कीपिंग सम अमाउंट एज अ कंटिजेंसी, या फिर फुल अमाउंट हैज टू बी विड्रॉन, हैज टू बी रिडीम्ड एज द पेमेंट हैज टू बी मेड टू बिल्डर। बिल्डर तो वहां पे चिल्ला रहा है इतनी अमाउंट चाहिए, 60 लाख दिख रहे हैं आपको, तो ये तो रिडीम करना बनता है। अभी आप बताइए उनको क्या करना चाहिए। ये सब हमारे पास हुआ है, ये केसेस हुए हैं। ये आज एजुकेशन के तौर पर हम आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं। प्राची, यस इट इज ऑप्शन 1, क्योंकि जैसे मैंने बताया, जैसे हम लोग ने शुरू में ही डिस्कस किया, देयर हैज टू बी अ कंटिजेंसी फंड। देखिए, ये अभी बहुत इजी लगता है, अरे हाँ कंटिजेंसी फंड तो रखना चाहिए, बट जब खुद पे बात आती है ना घर लेने की, तो एक इमोशनल कंपोनेंट आपके सब में वो होता है। एंड वी वांट टू टेल यू हियर इज, कीप योर इमोशनल क्वेश्चन सेपरेट एंड योर फाइनेंसेस सेपरेट। आप बहुत तरक्की करोगे। तो ऐसे टाइम पे अगर आपने एडवाइजर की सलाह ली, तो हम आपको बोल सकते हैं कि बैंक एफडीज थोड़े निकालो, थोड़े थोड़े से ईएमआई बढ़ा लो, टेन्योर बढ़ा लो। हम आपको अर्ली रीपेमेंट के लिए भी हेल्प कर सकते हैं, पर अभी पूरा मत निकालो, क्योंकि वी विल नेवर नो, देयर कैन बी इमरजेंसीज, देयर कैन बी फंड्स रिक्वायर फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव things happening or situations in your family। ठीक है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 1। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Mr. Pandey just got retired. He is willing to buy a weekend home. ठीक है, from the corpus received at the end of retirement. Retirement हो गई, बैंक से है या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, आपको अच्छी खासी अमाउंट मिलती है। यहाँ पे उनको 85 lakhs मिले हैं। तो चलिए देखते कि उनको क्या करना चाहिए। He should invest an amount giving a priority to liquidity first. This invest for them which is required for this age group. देखिए, वो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके पास भले 85 lakhs है, पर उसके बाद उनका इनकम बंद होने वाला है। तो वॉट एवर अमाउंट ही हैज, ही शुड नो वेयर टू इन्वेस्ट, एंड देर विल नॉट बी अ फर्दर इनकम। सो शुड ऑल्सो कंसिडर कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, बहुत अच्छी बात है। मेडिकल साइंसेस एडवांस सो मच, यस। मैं पहले सेकेंड ऑप्शन एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आंसर्स देखते हैं। सो मेडिकल साइंस अगर आगे बढ़ा है, तो इसका एक अच्छा इम्पैक्ट ये है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। पर हमारे लिए बीइंग एन एडवाइजर एक चैलेंज ये बन चुका है कि नाउ वी हैव टू प्लान रिटायरमेंट सो मेटिकुलसली दैट आप आगे
शायद 80 ईयर्स या फिर 85 तक जीने वाले हो, तो आपको ये कॉर्पस कैसे काम में आए। सो वीकेंड होम विल गिव हिम प्लेजर, लाइफ टाइम स्ट्रगल किया, अभी लग रहा है कि अभी मैं वीकेंड में वहां जाऊंगा, रिलैक्स करूंगा। तो सर्विस तो कितने साल की, 35, मोर देन 35 ईयर्स ऑफ स्ट्रगलिंग, सो नाउ इज द टाइम टू बाय अ होम। सो नहीं, उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए। अगर इजीली पॉसिबल है ज़रूर लीजिए, आपके ड्रीम्स हम जानते हैं, पर उसके लिए थोड़ा सा पहले से प्लान करो तो यू कैन अचीव ऑल योर ड्रीम गोल्स। ये हम ये नहीं बताने की कोशिश कर रहे कि सब इन्वेस्ट करो, कुछ मत लो, बिल्कुल नहीं। थोड़ा पहले से प्लान करो सो दैट वी कैन असाइन सम अमाउंट सेपरेटली फॉर बाइंग अ ड्रीम होम एंड सेपरेटली फॉर योर इनकम आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, ये बताने की कोशिश है, एज सजेस्टेड, एज टोल्ड बाय फर्स्ट इज राइट ऑप्शन। अच्छा चलो, वही मिस्टर पांडे है, उन्होंने मान लिया हमारी बात कि ही अग्रीड टू इन्वेस्ट ओवर बाइंग अ प्रॉपर्टी। चलो, उन्होंने मान लिया कि हम इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं, प्रॉपर्टी अभी नहीं खरीदते। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर हिम। हमने मीटिंग की उनके साथ, तो हमने इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस बताए, जिसमें शायद उन्होंने कहीं से सुना था कि कुछ लॉकिंग पीरियड में इन्वेस्टमेंट करो, 5 इयर्स का लॉकिंग रहेगा, पर जो रिटर्न्स मिलेंगे वो बहुत अच्छे आएंगे। सेकेंड ऑप्शन था, किसी फ्रेंड ने तो ना बहुत कमाए डायरेक्ट इक्विटी में, शेयर्स में, फ्यूचर एन ऑप्शन से F&O करके एक वो क्रेज थी, उनके पास अभी टाइम भी है ना, तो रिटायर हो चुके हैं, तो वो डायरेक्ट इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं कुछ अमाउंट या फिर सब अमाउंट। थर्ड ऑप्शन, उनको आफ्टर रिटायरमेंट ऐसे ऑप्शन को कंसिडर करना चाहिए जो कि उनको मंथली इनकम भी दे, जो कि लेस टैक्सेबल हो। एक सेशन इसके ऊपर भी होगा जो कि पूरा SWP कंसेप्ट है, वेल्थ क्रिएशन में भी उनकी हेल्प करे, और लिक्विडिटी, अगर कुछ इमरजेंसी आती है तो लिक्विडिटी भी उनको मिले। चलिए ऑप्शंस देखते हैं, कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा। कैन एनीवन आल्सो, यस, थैंक्स प्राची। और कोई है जिनको पार्टिसिपेट करना है? भले गलत आंसर हो, कोई बात नहीं, हम डिस्कस कर सकते हैं। ये गलतियां, कुछ मैं गलती नहीं बोलूंगी, ये हर एक का अप्रोच है, हो सकता है। वेरी गुड, ऑप्शन 3 हैज टू बी अ बेटर ऑप्शन। देखिए, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। मैं यहाँ पे जस्ट जनरलाइज स्टेटमेंट्स लिखे क्योंकि बहुत डिटेल थियरी, बहुत टाइम जाता था। ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू गो फॉर F&O, हम सजेस्ट नहीं करते, पर आपको चाहिए ना 85 लाख है ना, 5 लाख डाल दो उसमें, पर पूरी अमाउंट नहीं। आपको घर लेना है ना, अगर कुछ लैंड मिल रहा है 25 लाख तक, ठीक है। एज आई सेड, हर एक के लिए प्लान अलग बनेगा, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली बैकग्राउंड अलग है। तो यहाँ पे हम सिर्फ मोटा मोटी कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या गोल प्लानिंग किस तरह से काम करता है, एट विच एज। ठीक है, यही अगर कोई यंगस्टर आता तो हम बोलते नहीं ठीक है ना, करो, F&O भी कर सकता, विच वी जनरली डोंट रिकमेंड, बट इट डिपेंड्स। लास्ट केस स्टडी है, अर्ली रिपेमेंट ऑफ गोल। ट्रस्ट मी, दिस इज द एग्जाम्पल। ये मेरे स्कूल फ्रेंड की भी केस है, वो बिल्कुल नहीं सुन रहा। सो मेनी टाइम्स वी हैव टोल्ड हिम, प्लीज लेट्स अंडरस्टैंड दिस। मैंने यहाँ पे स्कूल फ्रेंड लिखा, इज वरीड अबाउट द प्रेशर ऑफ लोन, टेन्योर रिमेनिंग ऑफ फॉर दिस लोन है, 15 साल का लोन का टेन्योर बचा है, ही रिसीव्स बोनस एवरी ईयर, प्लीज हेल्प हिम इन सिलेक्टिंग द राइट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा ऑप्शन पहला देखते हैं क्या है। सॉरी, पे bonus in repaying the home loan, it will make his life easier। थोड़ा स्ट्रेस भी होगा ना वो, क्योंकि जितना 15 साल, वो छोटी बेटी है उसे, तो वो देखने के लिए बहुत डिफिकल्ट लगता है कि इतना बाकी, इतनी अमाउंट बाकी, 15 साल बाकी, छू बोनस मिला, वो इन्वेस्ट कर रहा है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, he should ideally invest his money, or maybe this bonus money, for at least half of the tenure which is remaining. This will help him with compounding benefits, double the capacity of amount that he has planned for, can be used for the repayment of loan। अभी समझते हैं सेकेंड ऑप्शन को। एनी गेसेस, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? 1 and 2, वेरी गुड। ओके प्राची, बोथ, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। It can be varied from person to person, but if instead of एक कंसेप्ट को समझ लेते हैं यहाँ पर, instead of targeting to repay a loan immediately, क्या होता है, एक सिनारियो कंसिडर करते हैं जहाँ पे 7 साल तक 3-3 लाख का बोनस मुझे मिल रहा था और हर साल मैंने 3-3 लाख भर दिए, तो
तो अगर मैंने ऑप्शन 1 को चूज किया तो बाय द एंड ऑफ द 7th ईयर मैंने कितना रिपे किया? 3 लाख बोनस था, 7 साल मैंने पे किया, मैंने कितने लैक्स का बोनस पे किया? सॉरी, कितने लैक्स का मैंने लोन में कंट्रीब्यूट किया? 21 lakhs. 21 लैक्स, ठीक है। पर अगर मैं यही 3 लाख हर साल इन्वेस्ट करती तो कंपाउंडिंग के साथ मुझे और 6, 7, 8 लाख शायद कंट्रीब्यूट होते 7 साल तक, इनफैक्ट ज्यादा। तो जब मैं रिपे कर रही हूँ तो 30 लाख से ज्यादा 7 साल के बाद मैं रिपे कर सकती थी। थिंक अबाउट इट, इफ योर ऑलरेडी लोन इज गोइंग ऑन, मीट अस, विल डिस्कस विद द नंबर्स, विद IRR, जो भी आपका लोन का रेट चल रहा है वो कंसिडर करेंगे, इन्फ्लेशन को हटाएंगे, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट सॉरी लोन टेन्योर बचा है, बैठ के नंबर्स के साथ कैलकुलेट करके हम प्रूव कर सकते हैं विच ऑप्शन इज बेटर फॉर यू। बट अगर आपकी ये केस है तो मेक श्योर दैट यू आर मीटिंग अस। दिस वाज द लास्ट केस। Aishwarya, I have a question. प्लीज विचारना। Suppose there is a home loan, okay, and as you Yes. said, the case study talks about bonus that he is receiving. Okay, Yes. so technically, if that bonus, if he considers that it is not his income, and then if he can allocate that to repaying his loan, the loan amount will gradually reduce. Okay, I can understand, and he can use whatever he is earning to make his investments. So his investments also can grow, and at the same time, his loan burden is also reducing. That is why I mentioned कि both the options should be ideal. करेक्ट प्राची, हे बरोबर आहे, एकदम बरोबर आहे. फक्त ह्याच्यानी काय होणार, जो तो असं करत गेला तर 7 वर्षांनी तो 21 लाख पे करू शकेल. पण हीच जर अमाऊंट ते न करता त्यांनी इन्व्हेस्ट केली, व्हॉट ही इज वरिंग अबाउट इज 8.5 अँड व्हॉट ही कॅन अर्न इन 7 इयर्स इज मोर दॅन 15% मे बी. Okay. सो त्याच्या सकट तो रिपे करणं, आम्ही असं नाही म्हणत की 15 वर्ष चालू देऊ. आम्ही एवढंच म्हणतोय की इमिजिएट न करता हे 21 लाख इन्व्हेस्ट झाले तर 32 लॅक्स रिपे करा ना 7 वर्षांनी, ते जास्त बेटर राहील. एवढाच फरक आहे. Okay. Madam, I have a question, or rather, I have an Yes. input here. You Yes. already helpfully mentioned that one should come to you, and then you can decide as to how Correct. much home loan should be paid. I had this Correct. issue. Of course, my home loan is paid now, and I'm retired. But I will just Okay. share my experience very quickly. Whenever Okay. I got any additional money, I was Mhm. always trying to consider whether I should repay the home loan now or wait. And in fact, there Correct. came a time when I wanted to repay the home loan, but then Hmm. the lady at the HDFC, she had got very friendly with me, and then she advised that as of now, you are paying only the principal amount. So if you invest the money that you are wishing to repay somewhere else, you will get Right. more interest than you are willing to pay. So then I said, then okay, then in that case, let the EMIs continue. See, the issue is that Correct. if one one does the repayment at an early stage, then he's paying only against interest, and hardly Interest. any principal is getting reduced. And if one pays at a later stage, then it seems that the rate that, in my case, it was HDFC. The rate that HDFC is charging is, much more, is not as much as the returns that I would be getting Returns if I that you would can invest it earn. anywhere. Correct. So that is Correct. always the dilemma when you decide to pay the home loan. So like you said, one has to come to you and then take Yes. expert advice. Yes, Thank because you. everybody's case is different. Everybody's loan schedule is different. So we always sit with the जो भी आपका जितना भी पीरियड बाकी है, लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रिड्यूसिंग है या फिक्स्ड है. सो डिपेंड्स केस टू केस. पर एक थॉट जस्ट देनी थी कि इमीडिएटली करने से अच्छा है थोड़ा, ऑफ कोर्स एज नीलेश जी ने एज ही राइटली सजेस्टेड कि कौन से स्टेज पे हो आप, अर्ली हो या लेटर हो या मिडल में हो, आपका एज क्या है, आपके ऊपर और क्या डिपेंडेंट्स कितने हैं, देयर आर मेनी फैक्टर्स. जस्ट हम कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर. थैंक यू नीलेश जी फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस. Thank you, ma'am. सो आप आगे बढ़ते हैं. केस स्टडीज यहाँ पे खत्म होती है. नाउ बीइंग एन एडवाइजर वी हैव क्रिएटेड 2 शीट्स फॉर यू. ये एक शीट है जिसमें हम ये पहली शीट पहले देख लेते हैं. प्लीज कनेक्ट विद आवर टीम. दिस इज माय फैमिलीज फाइनेंशियल प्रायोरिटीज.
जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे, हर एक के फैमिली की सिचुएशन, फैमिली बैकग्राउंड और प्रायोरिटीज अलग है. If you solve this sheet, trust me, it will not take more than 5 minutes. Sit with either of us, any of us rather. या आप हमारे साथ बैठ के शीट को सॉल्व कीजिए. हम आपके लिए अच्छा सा गोल प्लान, अच्छे से ब्लूप्रिंट निकाल सकते हैं, क्रिएट करके दे सकते हैं. प्लीज अप्रोच आवर टीम फॉर दिस शीट. दिस इज अ वंडरफुल शीट. There is one more sheet which I had also shown in the last session, which is a goal-based solution tracker, wherein this sheet can be used, one sheet can be used per goal. ठीक है, आप किसी भी एक गोल के साथ हमारे पास आइए. अगर हम अर्ली होम रीपेमेंट की बात कर रहे हैं तो ये शीट हम सिर्फ उसी के लिए यूज करेंगे. नेक्स्ट टाइम और आफ्टर दिस शीट वी कैन कंसिडर अनदर गोल विच कैन बी अ चाइल्ड एजुकेशन. तो इस तरह से एक शीट के लिए, एक गोल के लिए एक शीट. तो ये भी आप हमारे साथ 10 मिनट लगेंगे ये शीट के लिए, थोड़े 5 मिनट ज्यादा लगेंगे, बट दिस कैन चेंज योर लाइफ. So please contact our team and get these sheets done. See, we want to offer you all these services. इसके लिए चार्जेस नहीं है. हर एक जन अगर करके लेता है तो by end of 1 year इसका इम्पैक्ट आपको अभी नहीं समझ में आएगा. आप 1-2 साल बाद देखिए, you will understand what these sheets or what this work has contributed in your financial planning journey or assessment journey. As I said, please get in touch with our team. ये हमारे ऑफिशियल नंबर्स है. हमारे सभी रिप्रेजेंटेटिव्स, इनफैक्ट वी हैव अ सेपरेट टीम, सर्विस एग्जीक्यूटिव्स विल गाइड यू फिलिंग अप द शीट्स. ये 2 शीट्स मैंने यहाँ पर शो की है. लाइकवाइज वी हैव मोर देन 40+ शीट्स फॉर ईच प्रॉब्लम दैट यू हैव. जैसे हम लोग ने एक प्रॉब्लम नहीं, एक कंसर्न अभी डिस्कस किया, होम लोन, तो वी कैन एक्चुअली सिट विथ योर नंबर्स. सो हमारे पास उसके लिए भी शीट्स है जिसमें हम गाइड करेंगे आपके लिए क्या सही होगा. ठीक है, तो ये सब के लिए कभी भी रीच आउट कीजिए ऑन दीज नंबर्स गिवन योर. डिस्क्लेमर, सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से, दो वी डिड नॉट put any figures or IRR here in this presentation, but this is mandatory for us being an advisor. There are people who are joining regularly. Thank you once again for joining in, participating in today's session. It's lovely interacting with all of you. अगर आपका कोई भी फीडबैक हो हमारे सेशंस के लिए तो प्लीज ये QR कोड स्कैन करके हमें बताइए. वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू. Any messages? Let's check the chat box. No. And we complete our session here. गोल्स रिलेटेड हम बहुत कम सोचते हैं, या फिर कम प्रायोरिटी देते हैं, या फिर कम क्लैरिटी होती है. ये हम लोग ने हमेशा ऑब्जर्व किया है. सो ये सेशन इंक्लूड करना था. माय नेक्स्ट सेशन ऑन द कमिंग सैटरडे विल बी बेस्ड ऑन which goal falls into the short-term category, which are mid-term category goals, and which are long-term category goals, and how to invest for short-term. उसके लिए इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजी अलग होती है. मिड टर्म गोल्स है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रेटेजी अलग होगी. लॉन्ग टर्म के लिए कंप्लीटली अलग तरीके से वो चलता है. सो नेक्स्ट session we are going to conduct on how to achieve and how to invest to achieve particular goal of different horizon. चलिए यहाँ पे सेशन खत्म करते हैं. बिफोर दैट हमेशा हम लास्ट में एक फोटो खींचते हैं. हम एक फोटो की बैंक क्रिएट कर रहे हैं. तो मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप करती हूँ. आई रिक्वेस्ट एवरीवन इफ यू कैन स्विच ऑन द वीडियोस फॉर अ मिनट ओनली. माझा फोन देना. We would like to click a photo with all of you. Only for a minute. If you can all switch on the camera, we would appreciate. It's a request. If you could all participate. Thank you. थोडं पटकन करा सो दॅट आम्हाला पटकन फोटो घेता येईल आणि आम्ही सेशन संपवू शकू. ठीक आहे. Okay, I've clicked a photo. Thank you so much again for participating. See you in the next sessions. Bye. काही फीडबॅक असेल आम्हाला नक्की कळवा. You may log out. Thank you.